Good evening, everyone. On the behalf of Dental Desk Academy, it is my honor to welcome Dr. Anam Fatima, who is a very remarkable student and has cracked not only Haryana PSC, CGPSC, but is also a lovely ranker when it comes to NEET MDS. So, hi, Dr. Anam. Our pleasure having Thank, you here. thank, thank you so much, ma'am. It's very lovely of you to invite me here. And I also thank Dr. Santokh Singh, sir, for having me here. I hope that it would be a fruitful session and I'd be able to help the aspirants out here. This is so lovely. I can't actually express it better. So, Anam, first of all, please tell us how does it feel to be a gazetted officer in the government of Chhattisgarh at the moment, right? Right, right. This has been really an amazing journey. हाँ, बहुत और ऐसा मैं कुछ ऐसा नहीं मानती हूँ कि गेजेटेड ऑफिसर हो गई हूँ तो बहुत कुछ बड़ा है. But I think that these 3 years I have grown a lot, both clinically, professionally, and as a person. In these 3 years, I have changed a lot thanks to this job. And मतलब managing OPD on your own, conducting camps, attending trainings, conducting trainings, all that. Thanks to this job, I have grown a lot as a person, and this has been the best for me. You couldn't have put it better. So, Anam, back 2, 3 years ago, you cracked both Haryana PSC and CGPSC. Can you just tell me why did you choose CGPSC? Actually, this was a personal reason. Okay. I come from Allahabad, Uttar Pradesh, right? I'm from Uttar Pradesh, and at that point of time, there was no job in Uttar Pradesh PSC. Right. At that point of time, I was preparing. So I had to choose between Haryana and Chhattisgarh. My brother is in Sale Bhilai Steel Plant since last 10 years. So Okay. this was easy for me, and this was a natural choice for me to join CG. And now I, I'm married here only. oh, lovely. I'm going to settle over here only, It, most it probably. It is really, really good you put it that way because, I always implore our students that when it comes to PSCs, one should always try to choose their home states if possible, or someone, having a family close by Yes, is yes. very important. So, Anam, can you please tell me about your BDS journey? How did it begin and what inspired you to, prepare for these PSC roles? Uh, so I'm Dr. Anam Fatima. I come from, as I told you, I come from Allahabad, Uttar Pradesh. But I have done my graduation from Jamia Millia Islamia, New Delhi, which is a central university. And I was my university gold medalist also. Uh, like all other students during this, I also wanted to do MDS only. But for some reasons, I could not do at that point of time. I joined the clinic, private clinic. Side by side, I was also preparing for these exams, MDS also and PSC. And like we were chatting before, that all of a sudden a lot of state PSC notifications came. It came from Haryana, Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa. So it was there where the shift happened, and I decided that my main aim would be PSC exams, and NEET MDS would be secondary. And I later on, I right now also I think that I'll prepare for MDS. I'll do it, but my primary aim was PSC at It that makes point of sense. time. No, it But does it was make decided. sense. It Yeah. was decided at that point only. There was no choice. I got selected in NEET MDS also. My rank was good, and I got selected in PSC also. But my choice was already there that I'll choose PSC only. Choice was between Haryana and Chhattisgarh, and not NEET for me personally. So it was like that. Right. No, it really makes sense because you chose a stable government job, so it actually makes sense. Yes, yes, that was the prime reason for choosing this. It does make sense. So, Anam, can you now walk us through Haryana PSC? Can you tell us how your exam was? How was the interview like? Everything in detail. If I tell you the actual story, Haryana PSC got first time it got I what word I would say, cheating हो गया था exam में, and I had to take the exam again. The Yeah. first paper was really difficult. It was a very conceptual paper.
and I got so disheartened because I cleared that time also, and the second time भी मैंने clear किया. I was really disheartened, but Haryana ka paper was really tough compared to CG, and interview was also equally tough. Okay. Clearing Haryana, I think, was a greater achievement rather than clearing CG. Very honest of you. तो just tell me something, जैसे if you compare हरियाणा पीएससी and नीट, because आपने बोला both papers conceptual थे, which one was tougher in your opinion, नीट and हरियाणा में? आई वुड से जो सेकेंड पेपर था हरियाणा का वो बहुत इजी बनाया था उन्होंने, पीएससी बेस्ड ही था. बट जो पहला पेपर था वो मुझे नीट से भी अच्छा लगा, मतलब बेटर लगा. और मेनली इसलिए भी रीजन था क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था. यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ पेपर फ्रॉम पीएससी. यू ऑल्सो नो दैट वो पीएससी का एक पैटर्न होता है, Very पल्स true. के क्वेश्चंस होते हैं 70% एंड 30% थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं. बट हरियाणा का जो पेपर था दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. तो Okay. मेनली क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था इसलिए ज्यादा डिफरेंट लगा. Okay. Okay. And हरियाणा पीएससी में कितने क्वेश्चंस थे टोटल, if you remember? आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली बिकॉज इट्स बीन 3 years. पर मुझे सीजी का याद है. सीजी में देयर वर 100 क्वेश्चन डेंटल के, एंड 50 क्वेश्चन जीके के. पर Okay. हरियाणा में देयर वर नो क्वेश्चन रिलेटेड टू जीके. इट्स प्योरली डेंटल. Okay. Maybe there were 150 questions or what, but pure dental questions, no GK. Okay. And very in depth and very conceptual, especially जो original paper था. Okay. बट Okay. आई थिंक एज फार एज आई थिंक जितना मैंने पीएससी के पेपर देखे हैं, 70-80% इट कम्स फ्रॉम पल्स. तो Right. मास्टर पल्स, Right. देन जॉइंट सीरीज, मॉक टेस्ट, वो एक लेटर ऑन की स्टोरी. For you during your preparation time. So can you tell me which series you had joined for your PSC preparation? Actually, it was a book examination review series, and when I was preparing 3 years back, I searched a lot through the internet कि कहीं से मुझे ये previous year के papers मिल जाए, because whenever you are preparing for any exam, you need to know the pattern. बिना pattern के आप नहीं prepare कर सकते. And MDS and PSC exams का pattern अलग है. हाँ. तो जब मैंने सर्च किया, देन आई केम टू नो अबाउट कि एक एग्जामिनेशन रिव्यू सीरीज करके बुक है, एंड रिव्यूज भी उसके देखे. तो मैंने उसको ऑर्डर किया, एंड उसी से मुझे वहां से डेंटल डेस्क एकेडमी के बारे में उस बुक से ही पता चला. फिर मैंने ज्वाइन किया, और डेली मतलब हमारे एक इनसाइट्स होते थे, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था जिसमें हर सब्जेक्ट का डेली कुछ डिस्कशन होता था. तो कुछ ना कुछ इनपुट्स मिलते ही थे. प्रिपरेशन तो इंसान हर कोई अपनी करता है, लेकिन जब एक थोड़ा सा पुश, थोड़ा सा एक डिस्कशन, आपको अपने साथ वालों से भी पुश मिलता है, कुछ चीजें डिस्कस करते हो, तो वो बहुत हेल्प किया. आई थिंक उसने मुझे बहुत हेल्प किया. मॉक टेस्ट में देखती थी, पैटर्न देखती थी, क्वेश्चन सॉल्व करती थी. मेनली इट वाज ऑल अबाउट दिस ओनली. नहीं, वेरी वेरी ट्रू, क्योंकि आपने ये बात बहुत सही बोली कि नीट जो रहता है इट्स सो कॉन्सेप्चुअल कि उसमें प्रीवियस हाँ ईयर्स के क्वेश्चंस हम इतने करके हाँ यू हाँ कैंट हाँ डू हाँ वेल इन दैट पेपर. बट व्हेन इट कम्स टू पीएससी, मोस्ट ऑफ देम दे हैव अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के वही कट कॉपी पेस्ट करेंगे. सो हाँ हाँ. प्रीवियस तो ईयर्स उसमें पेपर्स, क्या या. होता है कि रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब हम वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में बात करते थे ना, क्वेश्चंस पूछे जाते थे, आपको रिवाइज बहुत होता था कि वेरी. आज इस चीज का डिस्कशन है, तो आज आप उसको पढ़ के आए हो, फिर आपके वो क्वेश्चंस रिवाइज हुए, तो वो बहुत हेल्प करता है. एंड वन थिंग जो मैं एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पे मुझे माइंड में आया, तो मैं ऐड करना चाहूंगी कि एक पर्सनल है. कभी भी ना, कभी भी हाइड मत करना, अपने नोट्स मत हाइड करो, कभी इंफॉर्मेशन मत हाइड करो. ये मुझे रियलाइज हुआ ड्यूरिंग प्रिपरेशन. और कभी आपको नुकसान नहीं होगा. मेरे फ्रेंड्स थे, हम लोग साथ में, वो मुझसे क्वेश्चन पूछते थे, मैं उनको पूछती थी. जब वो मुझसे पूछते थे तो मैं उनको 5 चीजें, मतलब कुछ 5 चीजें आप एक्स्ट्रा ही जानोगे उस प्रोसेस में जब आप उनकी हेल्प करोगे. तो कभी भी हाइड मत करना, कभी भी इंफॉर्मेशन मत हाइड करना. ये आपको हमेशा लाइफ में काम आएगा. ये मैंने मतलब एक प्रिपरेशन के टाइम में एक चीज सीखी, एंड मैं इसको बताना चाहती वेरी वेरी ट्रू यार, मतलब ना हूँ. कॉमरेडरी में नॉट ओनली इट्स नॉट लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप बट लाइफ लॉन्ग आपकी लर्निंग होती रहती है. हम कितनी हाँ कॉन्सेप्ट्स गलत सीख लेते हैं, सो यू गेट टू नो हाँ कि हाँ अच्छा
This, yeah. फिर आप गो थ्रू करते हो बुक से, जब आप बुक से गो थ्रू करते हो तो आप 5 नई चीजें सीखते हो। ये मुझे लगता है, इसलिए कभी भी हाइड मत करो, चीजें डिस्कस करो, बहुत हेल्प करता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो अनम, आपने देखिए दोनों जो पीएससी क्रैक किए, बोथ वर इंटरव्यू बेस्ड, एंड दैट इज एक्चुअली कमेंडेबल ऑन इट्स ओन। बिकॉज थियरी एग्जाम निकालना अलग बात होती है, व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू चीजें इतनी एम्बिगुअस होती हैं, इतना नीचे चीजें चलती है, वी एक्चुअली हैव नो क्लू। सो प्लीज, हम्म। जैसे फर्स्ट आप मेरे को आप ना हरियाणा पीएससी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में ब्रीफली बताएंगे? क्या पूछे थे? हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक? अ, मैं दोनों का अगर कंपेयर करूं, मैंने जैसे पहले भी बताया कि हरियाणा का डिफिकल्ट था। और पता है, एवरीथिंग इज अबाउट योर कॉन्फिडेंस। वेरी आप पढ़ के तो सब आए हो, है ना? जितने लोगों ने भी पीएससी क्रैक किया है, ऑल ऑफ देम हैव नॉलेज। हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ इंटरव्यू में वही डिफरेंस क्रिएट करता है। हर सीजी में जब मैं गई तो वहाँ एक रूम कंपैरेटिवली छोटा था, पैनल 3 लोगों का था। जब मैं हरियाणा में गई, इट वाज अ वेरी लार्ज हॉल, 5 पैनलिस्ट थे। तो ऑटोमेटिकली आपके एक उस पे असर पड़ता है, बट एट दैट मोमेंट आप जितना कॉन्फिडेंट रहोगे ना, वही हेल्प करता है, वही हेल्प करता है। बिकॉज इट इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। इंटरव्यू आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, इट इज द टेस्ट ऑफ योर नर्व्स। हाँ, कि ट्रू। आप कितना अच्छे से आपको कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हो। और मैं, अगर मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट इफ आई टेल यू, मैंने पहले भी एग्जाम दिए हैं, इंटरव्यूज दिए हैं, और किसी में भी नहीं हुआ था मेरा। सच में अगर एकदम सच बात बताऊं, और यहाँ मैंने 2 एग्जाम्स दिए, दोनों हुए। तो डिफरेंस क्या था? डिफरेंस वाज द मॉक इंटरव्यूज। एंड आई हम्म। थिंक हमारे यहाँ ईयर्स में भी आप लोग प्लान कर रहे हो, यस, है ना? यस। प्लान कर रहे हो। मुझे लगता है मैम वो जरूर करना। मेरे टाइम पे थोड़ा बहुत हमने किया था, एआरएस पे ही किया था। पर मेनली मैं बताऊं अपना, तो मैंने अपने ब्रदर, एल्डर ब्रदर की हेल्प ली थी। पूरे सेम तरीके से हम उसे कंडक्ट करते थे, मैं अपना फोल्डर लेके आती थी, एंड वही सेम सेम चीजें। तो मुझे लगता है डिफरेंस वही था। मॉक इंटरव्यू अगर करोगे ना, खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से एक रूम में बोलना, इतना नहीं होता जब आप किसी के सामने बोलते हो। वेरी ट्रू। तो आई थिंक, और वो जो नॉलेजेबल एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें पता है क्वेश्चंस क्या पूछे जाने वाले हैं। आप मन में जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो उतना नहीं मैटर करता, उन्हें हम्म। ज्यादा पता है कि क्या पूछा जा रहा है। तो आई थिंक मॉक इंटरव्यूज गेम चेंजिंग है। Very true. So nicely you're putting things up, you know. I wish you were my senior too, honestly. So आप Anam, hello? Just a second. So Anam, just like over the top of your head, a few questions which you can remember, which they were asking frequently in both interviews. देखो, डेंटल में अगर बोलूं मैं, तो डेंटल में उतना टेस्ट नहीं कर रहे थे। लाइक सीजी में एक क्वेश्चन था, मुझसे पूछा गया कि अच्छा, आप जहाँ पे प्राइवेट डेंटल में प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे आपने कौन कौन से केसेस देखे? तो आप जो भी आंसर दोगे ना, क्वेश्चन उसी से फिर वो फ्रेम होते Yes, जाएंगे। तो yes. मेडिकल एंड डेंटल प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे तो बहुत अच्छा है। फिर अगर जो हमारे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इसमें क्या चीजें डेंटल में देखने को मिलते हैं, एंड आप कैसे मैनेज करोगे वो पेशेंट्स को, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अदरवाइज रैंडमली किसी से कुछ भी पूछा जा सकता है, ये तो आप है ही। क्योंकि मुझसे आई मुझे हरियाणा में आई थिंक फेशियल एनेस्थीसिया, सर्जरीज, ये सब पूछने पूछने लगे थे। तो वहां पे आपका ना, वो ज्यादा मैटर करता है कि आप रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हो। Hmm. आपको ऐसे नहीं दिखाना है कि आपको तो लग रहा है कि आपका इंटरव्यू चला गया, वैसे नहीं करना है। यू हैव टू, अगर कहीं नहीं आ रहा है, जस्ट आंसर सर, आई विल गो थ्रू इट, सर मैम आई विल गो थ्रू इट, दिस क्वेश्चन, डोंट बीट अराउंड द बुश। Very एक true. क्वेश्चन तो मुझे मेरे किसी फ्रेंड का पूछा गया था, मुझे याद है। वो ये था कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपका सिलेक्शन हो गया है, एंड यू आर पोस्टेड एज अ डेंटल सर्जन, इफ यू हैव अ कंप्लेन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, हु विल यू रिपोर्ट टू? ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो Hmm. उसने शायद सीएमएचओ बोल दिया, सीएमओ बोल दिया, कुछ ऐसा आंसर दिया। तो व्हाट डिड दे से, दैट क्या तुम डायरेक्टली सीएमओ के पास चले जाओगे? तो ये चीज भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि Hmm. आप, हायरार्की क्या Hierarchy. होती है। हाँ, तो इसका आंसर क्या होता है यहाँ पे मैं बता देती हूँ। यू विल रिस्पॉन्ड, आप अपनी प्रॉब्लम सीनियर मेडिकल ऑफिसर को लेके जाओगे, या ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पास ले जाओगे, या सिविल सर्जन, जहां पे आप वर्क कर रहे हो उसके साथ। सिविल हॉस्पिटल में देयर इज सिविल सर्जन,
बाकी जगह ब्लॉक मेडिकल। तो आप डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम सीएमओ के पास नहीं लेके जाओगे, दिस वाज द आंसर। पर क्योंकि हमें ये सब चीजें मालूम नहीं होती है, हम डर जाते हैं। अगर आप हम्म। डर भी जा रहे हो तब भी आप अपना आंसर अगर अच्छे से दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत मत दो, बस बता दो कि मुझे नहीं पता। एक हम्म। चीज। और दूसरी चीजें जैसे बेसिक आपकी चीजें हैं, आपसे पूछेंगे कि रूरल में अगर आपकी पोस्टिंग हो रही है तो वहां आप कैसे अवेयरनेस फैलाओगे, तो उसका क्या आंसर देना है, रेगुलर कैंप्स कंडक्ट कराएंगे। ये सब चीजें बेसिक प्रोग्राम्स के बारे में पता होना चाहिए, टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, ओरल हेल्थ प्रोग्राम, और हमारे हॉस्पिटल्स की क्या हायरार्की होती है, सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, CHCs, CHCs। ये सब चीजें बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। इवन दो यू आर नॉट सिलेक्टेड अभी, बट ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। वन थिंग मोर विच आई एड, सीजी के बारे में, छत्तीसगढ़ में जो मुझसे पूछा गया था अभी मुझे याद आ रहा है। जब भी आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होगे उसके कुछ दिन पहले, मैम आपको भी शायद मालूम होगा कि डॉक्यूमेंट्स भरवाते हैं, ओ एंड यस। उसमें आप अपने अचीवमेंट्स डालते हो, कुछ अपने इंटरेस्ट डालते हो, हॉबीज डालते हो। तो वहां जो भी भर रहे हो, एक तो वो बहुत ध्यान से भरना कि क्या भर रहे हो। ऐसा कुछ मत डाल देना जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, और ऐसा कुछ जो भी डाल रहे हो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले लो। दो वेट। क्वेश्चंस मुझे याद आ रहे हैं मेरे बारे में जो मुझसे रिलेटेड है। मैंने मेरा प्लेस ऑफ बर्थ उसमें डालना था, इलाहाबाद डाला था मैंने। तो मुझसे ये पूछा गया कि इलाहाबाद का हिस्टोरिकल कुछ पूछा था कि उसके नाम सिग्निफिकेंस। के पीछे की क्या story है, ये सब चीजें पूछी। एक चीज और, मैंने जैसे जामिया मिलिया डाला था, तो हम्म। एट दैट मोमेंट नजीब जंग जो थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के। ओके। वो ऐसे कुछ था, तो ये बोला गया कि आपके वीसी जो पहले कभी वाइस चांसलर रह चुके हैं वो अभी क्या है, कुछ ऐसा समथिंग ऑन दैट ओ। लाइन पूछा गया। तो ये सब जो जेनरिक क्वेश्चन, ये आपको गलत नहीं करने हैं। ये आपको हम्म। अपना सब कुछ मालूम होना चाहिए, आपके होम टाउन के क्वेश्चंस, आपके स्टेट हम्म। के क्वेश्चन। और जैसे कि यूपी से, अगर मैं पर्सनली यूपी से थी, मुझसे हरियाणा में पूछा गया क्यों, वाई ऑल द वे फ्रॉम यूपी, वाई है। राइट। हाँ, राइट। या नीट में आपका सिलेक्शन हो गया है, आप में नीट में इतनी अच्छी रैंक है, तो क्यों यहाँ ज्वाइन कर रहे हो, रूरल रूरल एरिया में क्यों जाए। ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इस पे आपको ग्रिल करेंगे ही करें। आप वेट। बोलते रहो आंसर, दे कीप ऑन आस्किंग आस्किंग आस्किंग। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, इन्हें तो प्रिपेयर करके जाओ, वेट। इसमें अटकना ही नहीं है, है ना। तो ये चीजें हैं। और जितना कॉन्फिडेंट रहो अपने ऊपर, मॉक इंटरव्यूज दो, उतना अच्छा होगा, फिर कोई डर नहीं लगेगा, आपका थोड़ा डर कम हो जाता है मॉक वेट। देने से। Very true. I think Anam, literally you have covered everything. I'm sure जो भी स्टूडेंट आपका ये वीडियो देखेगा, they'll find it so insightful. So Anam, हम्म। just one last question which I wanted to ask for you. जैसे अभी आप जानते हैं यूपी पीएससी का एक फिक्स डेट आ गया है, एंड मोर सो इवन हरियाणा पीएससी इज समवेयर क्लोज इन द होराइजन। तो आपके हिसाब से लाइक कितने मंथ्स ऑफ intense prep is good enough for cracking these exams? एंड लाइक कितनी हमें सिटिंग वगैरह कैसे करनी चाहिए जब हम ऐसे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं? मैम डिपेंड्स, हर पर्सन का एक अलग है। हाँ, बट फिर भी मुझे लगता है 6 मंथ्स ऑफ डेडिकेटेड वो तो होना ही होना है। उसके बिना आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं दूसरों लैग से लैग करेंगे। कर जाते हो पीछे। फिर भी कभी ये नी चीज नहीं सोचना चाहिए, डोंट एवर कंपेयर योर जर्नी टू अदर्स, आपकी जर्नी अलग है और दूसरों से कंपेयर नहीं कर सकते। आप फ्रेशर हो, कुछ भी हो, आप क्रैक कर सकते हो, ये आपको बिलीव रखना है अपने ऊपर, क्योंकि जो चीजें चेंज नहीं हो सकती उन्हें नहीं कर सकते। बट स्टिल आई थिंक 6 मंथ्स ऑफ डेडिकेटेड प्रेपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, मैंने पर्सनली मॉक डेली दिया था। एक बार मेरा जब हो गया, मैं मॉक पे ज्यादा रहती थी रादर देन रिवाइजिंग नोट्स, मेरा ये अपना पर्सनल था, मैं मॉक ही देती थी डेली। आई यूज टू गिव वन मॉक पेपर एंड इट हेल्प। राइट। राइट। Really, thank you, Anam, and Saim, it's been such an insightful session. And kudos to you, and many congratulations for your personal life as थैंक well. यू, Right. It थैंक यू was सो lovely connecting with you, Anam, and I'm sure all students will really find this helpful. Thank you so मच, much. रियली रियली, it was very nice talking to you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Right. Oh, take Okay. care, Okay. Anam. Good day. Bye bye. Take care. Bye.